السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ایک رات کی بات جو کہ تحریر ہے سعدیہ غزل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 14۔ فاران خاموش تھا، میں بھی خاموش تھی، دل فریاد کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ رحم، اللہ اللہ۔ ایک دم روشنی ہو گئی اور لفٹ جھٹکے سے جل پڑی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، میرے ارد گرد خوشگوار اور مانوسی مہک پھیلی ہوئی تھی، مگر مجھے یہ یاد نہ آ سکا کہ اس مہک سے میرا واسطہ کہاں پڑا تھا۔ کچھ عجیب سی ذہنی کیفیت میں نے لفٹ کو روکا اور دروازہ کھلتے ہی باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ یہ چھٹا فلور تھا، 14ویں فلور پر واقع اپنے آفس پہنچنے کے لیے میں بے خودی کے عالم میں سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اپنے فلور پر پہنچ کر میں ہانپنے لگا تھا۔ میرے آفس کے سامنے ہی رکھی کرسی پر پیون بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر لپک کر میرے پاس آ کر سلام کیا۔ صاحب، آپ کے گھر سے بیگم صاحبہ کا فون آیا تھا۔ میں نے اس کی بات بے دہانی سے سنی تھی، ابھی تک ذہن حاضر نہیں تھا۔ لمبا لمبا کوریڈور عبور کر کے آفس میں داخل ہوا تھا تو فون کی بیل بج رہی تھی۔ ابھی میں ٹیبل پر رکھے فون تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ بیل بجنی بند ہو گئی تھی۔ میں ٹیبل کے پاس کھڑا ہو کر سانس ہموار کرنے لگا، ابھی تک حواس بال نہ ہوئے تھے۔ بیل دوبارہ بجنے لگی، میں نے ریسیور اٹھا لی۔ افنان، گہری سانس لیتے ہوئے میں بمشکل کہہ سکا، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں ہنسا گیا تھا یا رویا گیا تھا، یا شاید ہنسی میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ اوف افنان، تمہاری آواز تو سننے کو ملی۔ کون؟ میرا ذہن ابھی تک سو رہا تھا۔ میں پچھلے کئی گھنٹوں سے یہاں ٹرائی کر رہی ہوں۔ تمہارے پیون نے مجھے بتایا کہ تم ابھی تک آفس نہیں پہنچے ہو۔ اوف، میں پریشان ہو گئی تھی افنان۔ اچھا، بڑے بھائی نے تمہارے موبائل پر تو تم کو کال کیا تھا انہوں نے، اور میں نے تم کو میسیجز بھی کیے تھے، تم نے کوئی رپلائی بھی نہیں کیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے افنان؟ ہاں سوری، میں نے ارادتاً سوال نہیں کیا، یہ تو بلا ارادہ۔ دوسری طرف خاموشی ہو گئی۔ میں اپنی چیئر پر گر کر گہری سانسیں لیتا رہا۔ وہ دراصل تم کو چھوڑ کر آ کر میں سو گئی تھی، چند لمحے بعد کہا گیا تھا۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں روٹیوں سے بھرا تشت ہے، میں اسے اٹھا کر سنسان ویران راستوں سے گزر رہی۔ یک یک بہت سارے کووں نے مجھ پر حملہ کر دیا، ساری روٹیاں چھین کر لے گئے تھے۔ پھر میرے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے اور الماس کہہ رہی تھی، پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک تنگ اور تاریک کمرے میں بند ہو گئی اور دیواریں میرے گرد تنگ ہو رہی ہوں۔ یک یک ذہن بیدار ہو گیا تھا، میرے حواس پوری طرح سے کام کرنے لگے۔ مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ میں کن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ سارے مناظر ایک ایک کر کے نظر کے سامنے تازہ ہونے لگے۔ مجھے ایسے لگا جیسے تم نے مجھے آواز دی ہے، مجھے لگا کہ جیسے تم مشکل میں ڈر گئی تھی افنان۔ وہ جیسے سسکی لے کر بولی تھی، اب میری آنکھوں میں نمی بھر بھر کر آ رہی تھی۔ 2 منٹ کے لیے بھی مجھے تمہاری خیریت کا پتہ نہیں چلا نا افنان، تو مجھے ڈر لگنے لگتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی تمہاری آواز مجھ تک سے دور نہ ہو۔ آنکھوں کی نمی گلے میں اٹک رہی تھی، مجھ سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم کو کسی قیمتی کرسٹل واز کی طرح سنبھال کر رکھوں، جیسے سیپ میں موتی بند ہوتا ہے، ایسے دل میں چھپا کر رکھوں، تمہارے بچوں کی طرح سے کیئر کروں افنان۔ وہ رندوہے گلے سے کہہ رہی تھی اور میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تمہاری آواز سن کر اب مجھے تسلی ہوئی۔ مجھے لگا تھا جیسے اس نے مسکرا کر یہ بات کہی ہے، اور میری آنکھوں کا نمکین پانی گالوں پر رواں ہو گیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ ہاں، میں نے بمشکل اپنی کراہیں ہونٹوں میں دبائی تھی۔ فون بند ہو گیا تھا اور مجھ سے اپنی آنکھوں پر قابو پانا دشوار ہو گیا تھا۔ میں کیا کروں؟ یہ عورت میرے لیے بہت اچھی ہے، اور میں اس کے لیے، وہ میرے ساتھ کیا ہے اور میں اس کے ساتھ۔ میں گھٹ گھٹ کر سسکیاں لینے لگا۔ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا ہوں۔ مجھے یہ اختیار کس نے دیا کہ میں وصول تو سب اپنا حق سمجھ کر کرتا رہوں، اور جب دینے کی باری آئے تو پیچھے ہٹ جاؤں۔ گرم نمکین پانی شرٹ کا کالر بھگو رہا تھا اور میں بے اختیار ٹیبل پر سر ٹکا چکا تھا۔ مجھے یہ احساس بالکل نہیں تھا کہ میں اس وقت اپنے آفس میں ہوں، اور اگر میرے کسی ماتحت نے مجھے دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں خود کو کسی طرح کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے حواس میرے تابع نہ رہے تھے، جسم جھٹکوں اور لرزشوں کی زد میں تھا۔ نمکین پانی اب روانی سے ٹیبل پر گر رہا تھا۔ جب میں کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا تو یہ مجھے حق بھی نہیں کہ اس عورت کو اپنے پاس رکھوں، خود سے باندھ کر رکھوں، تکلیف میں رکھوں۔ اوف، یہ ایسی سوچ تھی کہ اس کے آگے میری باقی ہر سوچ منجمد ہو جاتی تھی۔ مجھے سب کچھ بھول گیا تھا۔ میں نے ایک دم سے ٹیبل سے سر اٹھایا اور میری نظر ٹیبل گلاس کے نیچے سبز مخمل کے اوپر لگے ہوئے چرمرائے ہوئے ملاقاتی کارڈ پر پڑی تھی۔ سادے سے سفید بیک گراؤنڈ پر سیاہ حروف سے الفاظ ابھرے تھے۔ یہ خلدون ابراہیم کا کارڈ تھا۔ یہ وہ کارڈ تھا جو میں نے ایک دن غصے میں توڑ مروڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ پھر مجھے اس خیال سے کہ اس پر ابراہیم نام لکھا ہوا ہے، جو ہر حوالے سے بڑا محترم ہے، میں نے اسے یوں ہی اٹھا کر ٹیبل کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ شاید یہ وہی کارڈ تھا جو کچھ دنوں پہلے میرے پیون کو تفصیلی صفائی کے دوران ملا تھا، اور جسے میں نے دیکھے بغیر ٹیبل گلاس کے نیچے لگانے کو کہا تھا۔ کارڈ پر میری نظر جم سی گئی تھی، آنکھوں میں پانی ٹھہر گیا تھا۔ کچھ دیر کارڈ کو بغور دیکھتے رہنے کے بعد میں نے بلا سوچے سمجھے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور خلدون ابراہیم کا نمبر ملانے لگا۔
6-7 بیل ہونے کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم، دوسری جانب سے کہا گیا۔ خلدون ابراہیم ہیئر۔ مجھے تو توقع نہیں تھی کہ فون خلدون ابراہیم ہی اٹھائیں گے، لہٰذا ان کی آواز سن کر میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ہیلو، انہوں نے ایک بار پھر کہا۔ میں بولنا چاہا، الفاظ میرے حلق میں پھنسنے لگے تھے۔ کون؟ ان کا لہجہ سوالیہ تھا، اور اب کی بار جب میں بولا تو آنسوؤں کے مارے آواز بھاری ہو گئی تھی۔ افنان عادل۔ اوہ اچھا، ان کے لہجے میں استجاب۔ خیریت سے ہو افنان؟ نہیں، میں نے بامشکل کہا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ابھی اسی وقت، فوراً۔ میں نے بے صبری سے کہا، چلے آؤ، انہوں نے بلا توقف کہا۔ میں نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ آفس کی گاڑی نکالی، تقریباً خالی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے مجھے الماس کی صبح کی نصیحت وغیرہ سب بھول گئی تھی۔ اندھا دھند ڈرائیو کرتا ہوا جب میں خلدون ابراہیم کے آفس پہنچا تو ان کے دروازے پر کھڑا اپنا انتظار کرتا پایا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ گرم جوشی سے آگے بڑھے۔ یار افنان، بڑے موقع سے آئے، میرا کندھا پکڑ کر بڑی شگفتگی سے انہوں نے کہا تھا۔ آج جب میں یہاں پہنچا تو میری جماعت نکل چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے بعد آفس میں داخل ہونے والا جو بھی پہلا شخص ہوگا اس کو جماعت کرنے کی دعوت دوں گا۔ اتفاق سے میرے یہاں آفس میں قدم رکھتے ہی پہلے آنے والا فون تمہارا تھا، وہ کہہ رہے تھے۔ میں بغیر پل کے جھپکایا انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ وہ تو ایسے بے تکلفی سے مجھ سے باتیں کر رہے تھے جیسے ہمارے درمیان کبھی کوئی تجربہ نہ گزرا ہو۔ چلو پہلے جماعت کر لیتے ہیں، باتیں تو ہوتی رہیں گی، وہ کہہ رہے تھے، اور میں بغیر کچھ کہے ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ وضو کر کے چند رکعت پڑھ کر خلدون ابراہیم نے کہا، چلو اقامت کہو، اور اقامت کے الفاظ میرے حلق میں اٹکنے لگے۔ روندے ہوئے گلے سے میں نے اقامت کہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس آدمی کی امامت میں نماز پڑھا ہوں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس آدمی کی امامت میں نماز پڑھتا؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ نماز کے دوران بھی ذہن بھٹکتا رہا۔ میں ذہن کو کھینچ کھینچ کر پکڑ کر نماز کی طرف بلاتا رہا۔ جماعت کرا کر تسبیح اور تمہید پر پڑھنے کے لیے خلدون ابراہیم دوزانوں ہو کر میری طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اور مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ مجھے یہ منظر کچھ دیکھا بھالا سا لگا تھا۔ خلدون ابراہیم بغور مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہو افنان، کیسے آنا ہوا؟ مجھے خاموش پا کر انہوں نے پوچھا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چند لمحے بغور دیکھتا رہا اور میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں پانی امٹتا چلا رہا ہو۔ میں پلکیں جھپک کر آنسوؤں کو اندر اتارنے لگا تھا۔ خلدون ابراہیم منتظر نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر چند لمحے بعد ہی میں نے بولنا چاہا تو میرا گلا رک گیا۔ بولنا میرے لیے خاصا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ میرا تو یہ بھی منہ نہیں ہے کہ آپ سے یہ کہہ سکوں کہ آپ سے شرمندہ ہوں۔ خاصا اٹک کر میں نے کہا تھا، میں آپ سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، تمہیں مجھ سے ایسا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں نرمی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم شرمندہ ہوگے، آدمی کا رویہ آدمی کا چہرہ اس کا ہر فعل بتا دیتا ہے۔ میں آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھتا رہا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اچھے آدمی سے اچھائی کبھی ختم نہیں ہوتی، بس وہ برے وقت کے پھیر میں آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں میرے اندر اچھائی کہاں سے نظر آ جاتی۔ اگر تم میں کوئی برائی ہوتی تو میں کیوں چاہتا کہ میری بھانجی کی شادی تم سے؟ انہوں نے سادگی سے کہا، آپ نے اپنی بھانجی کی شادی مجھ سے کرا کر اسے پھنسا دیا ہے۔ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، وہ میرے ساتھ بہت اچھی ہے اور میں اس کے ساتھ بہت برا۔ میں اچھا آدمی نہیں بن سکا، میں اچھا شوہر نہیں بن سکا۔ آج 4 مہینے ہو گئے ہیں میری شادی کو، میں اسے ایک دن بھی خوش نہیں رکھ پایا۔ میں کہہ رہا تھا اور بس کہے جا رہا تھا۔ میں نے اسے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دیا، تلخ رویے، ترش لہجے، سرد انداز میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں دیا، اور بدلے میں اس نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا۔ آپ نے اتنی بھاری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے، مجھے سونپ دی ہے۔ میں نے پانی جمع ہوتی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھنا چاہا تو ان کا عکس سنبھالنے لگا تھا۔ مجھے آپ مجھ سے واپسی لے لیں اسے، مجھ سے نہیں اٹھ پا رہی اتنی بھاری ذمہ داری۔ میں نے بے اختیار سے سکی لے کر کہا، میں آپ سے شرمندہ ہوں، آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں نہیں پوری کر سکتا یہ ذمہ داری۔ اب میں بے آواز رو رہا تھا، اس بات سے بالکل بے پرواہ ہو کر اس کے سامنے بیٹھا شخص مجھے کس قدر زہر لگتا ہے۔ کمال ہے، کیا ایک الماس کی ذمہ داری واٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ہیڈ ہونے سے بھی زیادہ بھاری؟ خلدون ابراہیم تعجب سے پوچھ رہے، بحیثیت واٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ہیڈ مجھے کسی بات کا خوف نہیں۔ میں نے کبھی آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ مجھے اپنی ہائر اتھارٹیز کے آگے جواب دہ ہونا پڑے۔ اس سلسلے میں مجھے اس سپریم اتھارٹی کے سامنے جواب دہ ہوتے ہوئے بھی ڈر نہیں لگتا جو ان ہائر اتھارٹیز کے اوپر بیٹھی ہے، مگر اس معاملے پر میں منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ میں برے وقت کے پھیر میں تو ایک ہی مرتبہ آیا تھا اور زندگی بھر کے لیے اس طور پکڑ ہوئی ہے میری۔ ابھی میری بات مکمل بھی نہ ہوئی کہ خلدون ابراہیم نے مجھے ٹوک دی۔ تم جس کو پکڑ کہہ رہے ہو وہ پکڑ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو مقرب رکھتا ہے ان کی طرف سے کوئی کجی پسند نہیں فرماتا۔ میں خلدون ابراہیم کی اس بات پر چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ میں مقربین میں سے ہوتا تو بات ہی کیا تھی؟ میں تو بڑا خطا کار ہوں، قصوروار ہوں، گناہگاروں میں سے ہوں۔ نیکوکار تو میں بھی نہیں، خلدون ابراہیم نے مسکرا کر کہا۔
یہ خطا، قصور، لغزش، گناہ جیسی ساری ٹرمز کا انسان سے ہمیشہ ہی تعلق رہتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہتے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اور خطا تو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سے بھی ہوئی تھی۔ اصل بات ہے کہ قصور کا احساس ہو جانا، جس طرح حضرت آدم اور بی بی حوا کا ہو گیا تھا۔ خطا پر شرمندہ ہونا اور شرمندہ ہو کر معافی طلب کرنے کا عمل انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اور وہ کہہ رہے تھے اور میں ایک رت انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ اچھا، اب تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے نزدیک گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں لاجواب تھا۔ مجھے خاموش پا کر انہوں نے کہا، میری اصطلاح میں ہر وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کی فطرت اس کا اندر آمادہ نہ ہو، جس کام کا کرنا اسے بے سکونی میں مبتلا کر دے، وہ گناہ ہے۔ انسان فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اور اس کی فطرت میں نیکی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ضرور ہے، مگر انسانی پیدائش گناہ گار نہیں۔ اس سے گناہ کسی سٹیمولس کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑا سٹیمولس شیطان ہے۔ شیطان کسی بھی صورت میں انسان کے سامنے آ سکتا ہے، اسے بہکا سکتا ہے۔ بہکانا انسان کی سرشت میں ہے۔ اگر وہ بہکے نہ تو وہ انسان کیوں کہلائے، فرشتہ نہ ہو جائے؟ خلون ابراہیم کہہ رہے تھے اور میں پوری آنکھیں کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انسان بہکتا وہاں ہے جہاں اس کا ایمان کمزور پڑ جائے۔ ایمان آدمی کا ایک ہی صورت میں کمزور پڑتا ہے، جب اس کے ذہن سے یہ خیال نکل جاتا ہے کہ میں خواہ کچھ بھی کروں، میرے دائیں بائیں نگران موجود ہیں۔ وہ میری پوری کتاب مرتب کریں، اور مجھے دیکھنے کے لیے ایک ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور جس کے دھیان میں تو یہ بات رہتی ہے کہ وہ بہک نہیں سکتا۔ اگر بالفرض وہ بہک بھی جاتا ہے تو نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے باپ حضرت آدم اور بی بی حوا سے رجوع کر لیا تھا کہ اے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت آدم اور بی بی حوا کو رجوع کرنے کی توفیق دی گئی تھی، ابلیس کو تو یہ توفیق نہیں دی گئی، لہٰذا وہ مقرب فرشتے کے درجے سے اتر کر لعنت زدہ ٹھہرا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں دیا کرتا، اور جن کو یہ توفیق ملی ہوتی ہے وہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ خلدون ابراہیم کہہ رہے تھے اور میں اپنے بارے میں اندازے لگا رہا تھا کہ مجھے توفیق ملی۔ شاید ہاں، شاید نہیں، خلدون ابراہیم کہہ رہے تھے۔ یہ پکڑ نہیں ہوتی عفنان، نظر خاص ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر خاص کسی کسی پر ہوتی ہے۔ تم جس کو سزا سمجھ رہے ہو وہ سزا نہیں ہے۔ ان کے کہنے پر میں نے ایک دم نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تو مسکراتے پایا تھا۔ عفنان، ہم اپنی آخری سانس تک لرننگ پروسیس میں رہتے ہیں۔ زندگی سے ہمیں ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ یہ موقع کسی نہ کسی سبق کے نتیجے میں ملتا ہے۔ سبق اور سزا میں فرق ہوتا ہے۔ سزا کی صورت میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اس صورت میں ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے، جبکہ سبق میں سیکھنے کا مارجن ہوتا ہے۔ سبق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو آدمی خود سیکھتا ہے۔ انسان زندگی میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے، ہر غلطی اسے کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ اور دوسرا سبق وہ ہوتا ہے جو کوئی ٹیچر انسان کو سکھاتا ہے۔ ٹیچر انسان بھی ہو سکتا ہے، وقت بھی، مگر سب سے بڑی ٹیچر تو وہ نیچر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے۔ اس رات قدرت تمہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ حالانکہ تمہارے بڑے بھائی سے میری تفصیلی بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس دن تمہیں بہت سمجھایا تھا، مگر تمہاری سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ ہاں، آتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک ایسا سٹیج کہ اس کی عقل صفر ہو کر رہ جاتی ہے، تب پھر قدرت اس کو ایسا جھٹکا دیتی ہے کہ منہ کے بل زمین پر گرا چلا جاتا ہے۔ انسان کے سنبھلنے کے لیے اسے جھٹکے لگنے ضروری ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کی کیٹیگری پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض لوگ پہلا جھٹکا لگنے پر سنبھل جاتے ہیں، بعض یک کے بعد دیگرے جھٹکے لگنے پر سنبھلتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس پر کئی جھٹکے بھی اثر انداز نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں پہلے جھٹکے پر سنبھلنے والوں کی کیٹیگری سب سے اچھی ہوتی ہے۔ تمہارے سنبھلنے کے لیے بھی اس رات تم کو جھٹکا لگنا بہت ضروری تھا۔ عفنان، یہ قدرت کی طرف سے تم کو وارننگ ملی تھی، میں تو صرف ایک میڈیٹر ہوں۔ عفنان، اگر اس وقت تم کو یہ جھٹکا نہ دیتا تو ممکن تھا کہ تم بھی تیسری کیٹیگری میں آ جاتے، مگر تم کو تو پہلے ہی چن لیا گیا تھا، پھر یہ کیسے پسند کر لیا جاتا کہ تمہارا شمار بھی تیسری کیٹیگری میں ہو؟ وہ کہہ رہے تھے اور میں سانس روک کے انہیں سن رہا تھا۔ کچھ دنوں پہلے میں نے سوچا تھا کہ اس رات کا الماس کے ماما کا اور میرا کیا کمبینیشن ہے، اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ کمبینیشن تو بڑا گہرا تھا۔ اس رات تم کچھ غلط ضرور کرنے جا رہے تھے، مگر تم سے کچھ غلط ہو نہیں سکا کیونکہ تم پہلے ہی روک دیے گئے تھے۔ تم کو روک لیا گیا تھا، اور تم چونکہ فطرتاً نیک ہو، تمہاری فطرت میں برائی نہیں، اسی لیے یہ تھوڑا بھی تم کو بہت لگ رہا ہے، اسی لیے تم کو اتنی سی بات ہضم نہیں ہو پا رہی۔ سبق کو بھی تم سزا کے طور پر لے رہے ہو۔ اصل میں ساری بات احساس کی ہوتی ہے، جن کا احساس زندہ ہوتا ہے انہیں چھوٹا بھی قصور بہت بڑا لگتا ہے۔
मैं अपने सामने बैठे शख्स को बेयकीनी से देख रहा था। ये वो शख्स था जो मुझे बेहद ज़हर लगता था, जिससे मुझे बेतहाशा नफ़रत थी। और इस वक़्त वही शख्स कितने आराम से मेरे मुतल्लिक़ तज़किये कर रहा था, कितने आराम से किसी माहिर नफ्सियात की तरह मुझे परत दर परत खोल रहा था। वरना लोग बड़े-बड़े गुनाह कर जाते हैं और उन्हें कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि इनका एहसास मर चुका होता है। हालाँकि इनकी बदफ़ेलियों के नताइज वक़्तन-फ़वक़्तन उनके सामने आते रहते हैं, मगर इनसे उनकी समझ ले ली जाती है। तो हरगिज़ ये मत समझना कि अगर ऐसे लोग अभी बच रहे हैं तो वो बचे ही रहेंगे। इन पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। इनके अमाल पर इनके अमाल पर कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा। खुल्दून इब्राहिम की इस बात पर मेरा हैरत के मारे दाँतों में उँगलियाँ दाब लेने को दिल चाहा था। क्या ये आदमी दूसरे की सोच जान लेने पर भी दस्तरस रखता है? मैंने भी एक दिन ऐसा ही सोचा था। नहीं, बल्कि इनका तो अलहदा से अकाउंट मुरतब हो रहा है। इनका हिसाब तो एक और दिन हो जाएगा। वहाँ इकट्ठा हर फैसला चुका दिया जाएगा। बस हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इस बड़े दिन फैसले झुकने से पहले ही अपना बंदोबस्त कर लें और ख़ुद को दुरुस्त कर लें। मैं पलकें झपकाए बगैर खुल्दून इब्राहिम को देख रहा था। वो कह रहे थे, उस रात तुमसे कोई बड़ा कसूर नहीं हुआ था, गलती मुझसे हुई थी। मुझे अगर पता चल ही गया था तो अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए था, और गलती तुम्हारे वालिद साहब से भी हुई थी। वो तुमसे खफा ही रहे, उन्हें भी तुमको माफ़ कर देना चाहिए था। अब की बार मैंने पूरी आंखें खोलकर उन्हें देखा। वो कैसे ये सब जानते थे कि अबू मुझसे और अभी भी वो बात जो उन्होंने चंद दिन पहले मुझसे कही थी, चंद साल पहले भी तो कह सकते थे। मुझे हसरत सी हुई थी मेरा हाल भी कभी इतना बुरा ना होता। खुल्दून इब्राहिम मजीद कह रहे थे, ये तो सारे उस रात के कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब थोड़ा सा इनसे पहले के इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मगर मैं हिलाने लगा। मैंने आज तक किसी से इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। मैंने बौखला कर कहा, तो कोई बात नहीं, अब मुझसे डिस्कस कर लो। उन्होंने इत्मीनान से मुझे दावत दी और मेरी ज़बान पर ताले पड़ गए। बेख्तियार मेरी निगाह झुक गई। मेरी हिम्मत ना हो सकी कि उनको नज़र उठाकर भी देखूं। इसके बावजूद भी मुझे इस बात का पूरा एहसास था कि वो मेरी तरफ मुंतज़िर निगाहों से देख रहे हैं। मुझे खामोश पाकर उन्होंने गहरी सांस ली, ताहम कुछ कहा नहीं। मैं इससे क्या डिस्कस करूं? खासी देर बाद मैंने खासी बेबसी से हाँफते हुए पूछा था, तो मुझे ध्यान से सोच कर बताओ कि उस रात असल में हुआ क्या था? क्या हुआ था? मैंने लाचारी से दोहराया था। खुल्दून इब्राहिम मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। मैंने सर थाम लिया। उस रात क्या हुआ था ये सोचना इतना मुश्किल काम है? उनके लहजे में बेहद ताज्जुब था। इधर मेरी तरफ देखकर कहो। हाँ। इनके कहने पर बेख्तियार मैंने उन्हें देखा तो बेहद संजीदा होकर अपनी तरफ देखता पाया था। उनकी आंखों में ऐसी मगनातीसियत थी, कि ऐसी कशिश कि मैं इस बार निगाह चुरा नहीं सका था। स्पेलबाउंड हो गया था, सोचने और बोलने पर मजबूर हो गया था। मैं बस आया था, मैंने अलमास को बुलाया था। वो बाहर आई थी और फिर सहर एकदम टूट गया। मैं कहते रुक गया था, मुझे गलत सी आई थी। खुल्दून इब्राहिम को बताते हुए मैंने बेख्तियार निगाह नीचे की और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सवालिया नज़रों से मुझे देख रहे हैं। फिर कुछ नहीं, मैंने बामुश्किल कहा। कुछ नहीं का मतलब? हनूज उनका सवालिया अंदाज बरकरार था। मैं चुप था। मैं आ गया था, वो पूछ रहे थे। मैं इस बार भी चुप रहा। उन्होंने तवील सांस ली। फ़र्ज़ करो कि मैं ना आता, फ़र्ज़ करो कि तुमसे गुनाह हो जाता। मैं सर उठाकर खामोशी से उन्हें देखे गया। पता नहीं, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए-फंसाए मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब सोच लो। उन्होंने इत्मी उन्होंने इत्मीनान से एक बार फिर मुझे दावत दी। मैं शायद अपने ज़मीर के हाथों मर जाता। मैंने आहिस्तगी से कहा, तो फिर? उन्होंने तभी संजीदगी से कहा, तुम इस पर तो रो रहे हो जो गुज़र गया, इस पर तो पछता रहे हो कि जो हो चुका। तुम इस पर शुक्र नहीं करते कि क्या होने जा रहा था और क्या नहीं हुआ था। खुल्दून इब्राहिम की इस बात पर मैंने एकटक उन्हें देखा था। तुम शुक्र अदा नहीं करते। उस रात जिससे में तुम्हारे मामलात ख़राब होने जा रहे थे, इसको तुमको देखकर तुम मामलात ठीक करवा दिए गए। खुल्दून इब्राहिम की इस बात पर मैं दम्बख़ुद सा उन्हें देखे गया था। क्या कह रहे थे वो? कितने आराम से कह रहे थे। मैंने इस तरह कब सोचा था। मेरी ज़िंदगी गुजर जाती और ये सब तो मेरे ज़हन के किसी गोशे में कभी भी नहीं आता। खुल्दून इब्राहिम मज़ीद कह रहे थे, मेरे पास तो ये कहने के लिए चले आए कि तुमसे ये ज़िम्मेदारी उठ नहीं पा रही। तुमने क्या समझ लिया है अफ़नान कि अल्लाह ताला ने इंसान को यूँ ही पैदा कर दिया है, यूँ ही इस दुनिया में भेज दिया है? बल्कि इंसान तो यहाँ आया ही ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए। कभी अल्लाह के हकूक़ की ज़िम्मेदारियाँ, कभी बंदों के हकूक़ की ज़िम्मेदारियाँ। ज़िम्मेदारियों की एक लंबी लिस्ट है। इंसान का इन ज़िम्मेदारियों से फ़रार मुमकिन ही नहीं। अल्लाह ताला की लिखी तकदीर से फ़रार मुमकिन नहीं। मैं बिना पलके झपकाए उन्हें देख रहा था। क्या गलत कह रहे थे वो? एक-एक लफ्ज़ तो सही था। मैं जल्दी-जल्दी अपनी पिछली ज़िंदगी का हिसाब-किताब करता रहा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देख लिया था। मैंने तकदीर से फ़रार हासिल करने की जब भी कोशिश की थी, मैं वहीं फँस गया था। पिछली बार इसका नतीजा मैंने इंग्लैंड में भुगता था। मैंने तब अल्लाह ताला के वजूद पर शक किया था और मेरी ये बात पसंद नहीं की गई थी। पूरे 7 दिन तक मुझे बिस्तर पर ऐसे फेंक दिया गया कि मैं ना ज़िंदों में था, ना मुर्दों में।
میں انگلینڈ سے بھاگ جانا چاہتا تھا، میں وہاں کسی قیمت پر رکنا نہیں چاہتا تھا، اور تقدیر میں یہ تھا کہ میں ادھر سے ہلوں بھی نہ۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی، میری نظر کو جکڑ دیا گیا تھا، سامنے کی چیز مجھے نظر نہ آ سکی تھی۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ میرا پاسپورٹ کھو گیا ہے۔ پھر جب میں نے الماس کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، میرا یہ ارادہ بھی پسند نہیں کیا گیا۔ مجھے ایسی پریشانی میں مبتلا کر دیا گیا کہ باقی ہر چیز میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس پریشانی میں دنوں تک مبتلا رہا۔ پچھلی غلطی مجھ سے نادانی میں ہوئی تھی، اس کے بعد کی ساری غلطیاں بوکھلاہٹ کا نتیجہ تھیں۔ بوکھلاہٹ میں ہر چیز غلط کرنے کے بعد بوکھلاہٹ میں ہر غلطی کرنے کے بعد کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا جاتا۔ اور خلدون ابراہیم کہہ رہے تھے، افنان، جب ہم ایمان لاتے ہیں نا، تو یہ بات بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہوتی ہے کہ تقدیر میں ہر اچھائی برائی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس پر امپلیمنٹیشن ہو کر رہتا ہے۔ انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم لاکھ سر پٹک لیتے، پیر پٹک لیتے، انکار کر دیتے، تمہاری تقدیر میں الماس لکھی جا چکی تھی تو وہی تم کو ملتی، وہی تم کو ملی ہے۔ خلدون ابراہیم نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میں گنگ تھا، ایسے خاموش جیسے بولنا چاہتا تو بھی جانتا نہیں کہ کیا بولوں۔ یہ فیصلہ تو پہلے ہی کیا جا چکا تھا، چاہے بھلا ہے یا برا۔ اب جب کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اب تو صرف اسے قبول کرنا ہے۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم قبول نہیں کر پا رہے۔ حالانکہ بندگی کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکا دے، اس کی رضا میں راضی رہے، مصیبت پر صبر کرے اور نعمت پر شکر۔ خلدون ابراہیم کی اس بات پر میرا سانس رک گیا تھا۔ میں مصیبت پر بے شک صبر کرتا رہا، مگر میں نے نعمت پر شکر کب کیا تھا؟ میں تو ایک بلال مرتضیٰ کا، اللہ کے ایک بندے تک کا شکر ادا نہیں کر سکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق کر دی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ خلدون ابراہیم مزید یہ کہہ رہے تھے، تمہیں تو نعمت ملی ہے افنان، اور تم مستقل یہی کہے جا رہے ہو کہ تم کو نہیں چاہیے تھی۔ تم نہ چاہنے کے باوجود اگر تم کو کچھ دے دیا گیا تھا تو کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اس کو غنیمت جان لیتے؟ کیونکہ وہ ذات جو دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ خلدون ابراہیم کی اس بات پر مجھے اپنے پیروں سے زمین نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خلدون ابراہیم مجھے دیکھے گئے۔ مجھے ان کے دیکھنے کی پرواہ نہیں تھی، میں تو اپنی سوچ میں گم تھا۔ مجھے الماس پر رشک آ رہا تھا۔ مجھ سے اچھی تو وہ تھی، کہتے ہیں نا کہ مردوں میں عورت سے 7 گنا زیادہ عقل ہوتی ہے۔ مجھ سے 7 گنا کم عقل اس کے پاس تھی، مگر اس کا استعمال اس نے کیا تھا، جو بات آج کسی کے بتانے پر میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ الماس پہلے ہی سمجھ چکی تھی۔ میرا دل چاہا الماس سے خوب جھگڑا کروں، اسے لڑوں۔ تمہیں پتا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے اس کو کبھی اس لائق کب سمجھا کہ وہ مجھے کچھ بتاتی؟ میں نے کب اسے کچھ پوچھنے کی زحمت کی تھی؟ میں نے گہری سانس لی اور آج پہلی دفعہ خود مضافے کے لیے خلدون ابراہیم کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے بے اختیار نظر اٹھا کر دیکھا، اور مجھے یاد آیا کہ جب ایک بار خلدون ابراہیم میرا بازو پکڑ کر مجھے کہیں لے جا رہے تھے تو میں بے دردی سے اپنا آپ بازو چھڑواتے ان سے کہہ رہا تھا، راستے کا مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے ان سے غلط کہا تھا، راستہ بتائے جانے کی ضرورت تو مجھے ہمیشہ سے تھی، اور آج بھی اگر میں خوفزدہ نہ ہو جاتا تو خلدون ابراہیم کے پاس کبھی نہ آتا۔ میں ان کے پاس آیا ہی خوفزدہ ہو کر تھا۔ آپ مجھے بڑی دیر سے ملے، میں نے آہستگی سے کہا۔ وہ نرمی سے مسکرائے تھے۔ میں تو ہمیشہ تمہارے قریب ہی تھا، بس ہماری ملاقات کا دن آج کا طے تھا، اور آج بھی میں نے تمہیں نیا کیا بتایا ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں 1400 سال پہلے بتائی جا چکی ہیں، وہ کہہ رہے تھے، اور اس بار میں نے بغور انہیں دیکھا تھا۔ امام کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جسے لوگ فالو کرتے ہیں، اور تمام امام الٹیمیٹلی ایک ہی امام کو فالو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ میں مزید کچھ کہے بغیر مسجد سے باہر چلا گیا۔ مسجد کے احاطے میں کھڑا ہو کر میں نے ایک نظر تاحد نگاہ پھیلے نیلے آسمان کو دیکھا، پوری آب و تاب سے چمکتے سورج کو دیکھا۔ آسمان آج سے پہلے اتنا مہربان مجھے کبھی نہیں لگا تھا۔ سورج کی روشنی میں حدت ہونے کے باوجود مجھے محسوس نہ ہوئی تھی۔ میں نے 2-3 گہری سانسیں لیں، اور ہوا آج سے پہلے اتنی تازہ مجھے کبھی نہ لگی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ بڑے بھائی نے مجھ سے کہا تھا، افنان کی زندگی بہت چھوٹی ہے، اور ہمیں جو وقت ملا ہے بہت غنیمت ہے، اسے پچھلا سوچ کر ضائع مت کرو۔ مجھے آج یہ پتہ چلا تھا کہ زندگی کتنی چھوٹی ہے، اور ہمیں جو وقت ملا ہے واقعی بہت غنیمت ہے۔ میں اڑ کر گھر پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے مجھے جلدی کچھ کام کرنے تھے، اور اس کے لیے مجھے بینک جانا تھا۔ خالی سڑکوں پر صبح دی گئی الماس کی ہدایت کے عین مطابق بڑی احتیاط سے گاڑی ڈرائیو کرتا میں بینک پہنچا۔ مینیجر نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ میں نے اسے اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے رقم بتانے کے لیے ساتھ بتا دیا تھا، آپ کی مسز چند دن پہلے یہاں آئی تھی، جناب آپ کا لکھا ہوا 50,000 کا
चेक कैश करवाने। ओह अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसने मेहर की रकम निकलवा ली है। मगर ये हैरत अंगेज़ बात थी कि उसने इस बारे में मुझे कुछ बताया नहीं था। मुझे बेचैनी होने लगी। हर बात मुझे बता देने वाली अल्मास ने ये बात तो मुझे नहीं बताई थी। चंद लम्हे बेआरामी से कुर्सी पर पहलू बदलने के बाद मैंने खुद को तसल्ली दी। कोई बात नहीं, इसकी चीज़ थी, उसने ले ली, अच्छा किया। फिर मैंने अपनी 1 महीने की तनख्वाह के बराबर रकम निकलवाई। 2 महीनों की तनख्वाह के चेक लिखकर मैंने अपने पास रख लिए। बजट ये काम निपटाने के बाद मैं घर के लिए रवाना हुआ। घर जाने वाली लंबी सी मरकजी शाहराह पर गाड़ी खराब हो गई। ओफ, ये सरकारी गाड़ी! मैंने कोफ से सोचा था। फिर धक्का लगाकर चलाते हुए इसे करीबी वर्कशॉप में दिया, जिसका शटर खुशकिस्मती से आधा खुला हुआ था। थोड़ी दूर चलने पर करीबी मसाजिद से अजान की आवाज़ कानों में पहुंची तो इस दावत को रद्द नहीं कर पाया था। और इस बार मैंने बड़े खुशो खुजू और दिल से नमाज पढ़ी थी। वहां से निकलकर घर के रास्ते पर जाने वाली सड़क पर मुड़ते ही किसी ने पीछे से मुझे आवाज़ दी थी, अफनान साहब। मेरी कोफ्त की कोई इंतहा न रही। मैं आज जितनी जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था, इसी कदर देर हो रही थी। झुंझुलाकर मैंने पलट कर देखा तो मेन रोड पर वाक़ मशहूर केटरिंग सर्विस और होटल का मालिक मेरे सामने खड़ा था। हमारे घर की अक्सर छोटी-छोटी तकरीबात का इनेकाद इन्हीं के ज़ेर इंतज़ाम होता था। इनका मालिक ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान को बहुत अच्छी तरह से जानता था। और इस वक्त तो वो मुझसे पूछ रहा था, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने खासी ताज्जुब से उसे देखा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मैंने अचंभे से बताया। आप अस्पताल में दाखिल थे? उसने कहा और मुझे समझ में आया कि वो मेरी तबीयत के बारे में क्यों पूछ रहा था। मैंने इस बात में सर हिला दिया। असल में इस दौरान आपकी मिसेज़ बाकायदा यहाँ आती रही हैं। वो हर रोज़ एक रैंडम तादाद के लिए खाने का ऑर्डर दे देती थीं। वो मुझसे कह रहा था और मैं पूरी आंखें खोलकर उसे देख रहा था। इस आदमी ने बाकायदा दिन मुकर्रर कर रखे जिनमें मुस्तहक़क़ीन और ग़ुरबा के लिए उसके यहाँ खाने का एहतमाम होता था। इन मुकर्रर करदा दिनों में उसके होटल के बाहर लोगों का हजूम रहता था। और इस वक्त वो कह रहा था, आपकी मिसेज़ एक बाहिम्मत खातून है। मैं इनको देखता था। जब तक इनका ऑर्डर ख़त्म नहीं हो जाता था, वो गाड़ी में बैठी इंतज़ार करती रहती थी। मुस्तकिल 3 दिन तक ये काम उन्होंने अपनी निगरानी में करवाया। एक दिन आपके ड्राइवर ने बताया, हमारे अफनान साहब अस्पताल में दाखिल हैं। आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। मैं समझा कि आप बहुत बीमार होंगे। आपसे माज़रत, मैं आपकी आदत के लिए चंद मसरूफ़ियात की बिना पर ना आ सका। मगर मैं आपकी सेहत के लिए दुआ करता रहा था। उसकी बात सुनकर मेरी नज़र खुद ब खुद झुक गई थी। और सर भी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं बमुश्किल कहकर वहाँ से निकला था। अब मेरी समझ में आ रहा था कि मेहर की रकम का मसरफ़ क्या था। अब मुझे ख़्याल आ रहा था कि अस्पताल में क़याम के दौरान मख़सूस औक़ात में अलमास कहाँ-कहाँ गायब हो जाती थी। अब मुझे याद आ रहा था कि उसका और अल्लाह ताला का आपस का मामला क्या था। और मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अलमास आख़िर चीज़ क्या है। मुझे एतराफ़ था कि मैं उसे समझ नहीं सका। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं उसे शायद आइंदा भी समझ ना पाऊँ। मैं हैरान था कि इसमें ऐसा क्या था जो नहीं था और ऐसा क्या नहीं था जो था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया सामान्य ज़ीस्त है और इसकी बेहतरीन मता सौलेह औरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था। मैंने चलते-चलते रुक कर जेब थपथपा कर अलमास की तस्वीर की मौजूदगी को महसूस करने पर इत्मीनान और सकून का सांस लिया। मुझे अब इस तस्वीर की कीमत का अंदाज़ा हो रहा था। अलमास बिलाशुबह एक सौलेह औरत थी और इस बेहतरीन औरत को मेरे लिए रखा गया था। आज पहली मर्तबा मुझे खुद पर रश्क आ रहा था। इस वक्त कौन सा ऐसा जज्बा था जो मैं अलमास के लिए महसूस नहीं कर रहा था। अजीब सी हिद्दत थी इस जज्बे में। बड़ी नरम और लतीफ़ सी आँच थी। अजीब ठंडी सी आग थी। अब से कुछ सालों पहले भी मैं इसी कैफियत का शिकार हुआ था। मगर वो आग जला देने वाली थी और ये आग जला देने वाली नहीं थी। वो आग गर्क कर देने वाली थी और इस आग में मुझे जलने में भी मज़ा आ रहा था। मैंने चलने की रफ्तार तेज़ कर दी। मैं पहले ही देर कर चुका था और मज़ीद देर नहीं करना चाहता था। इत्तलाई घंटी बजाने पर फ़रहान ने मेन गेट खोला और मुझे देखते ही उसने खुशी और इत्मीनान से कहा था, अस्सलाम वालेकुम चाचू, आप आ गए? क्यों, तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? मैं सलाम का जवाब देकर पूछता हुआ अंदर आ गया। मैं तो नहीं, कोई और आपका इंतज़ार कर रहा था। आपको जब पता था कि आज स्ट्राइक है तो फिर आज गए क्यों? क्योंकि ज़रूरी था, मैंने आहिस्तगी से कहा। कुछ पता भी है कि आपके पीछे चची कितना परेशान थी? मैं उसके अंदाज़े पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। वो हैरानी से मुझे देखने लगा था। गुड हेवंस चाचू, आप मुस्कुरा रहे हैं? आपको पता है चची पूरे वक्त लॉन में इतनी शदीद गर्मी में टहलती रहीं। वो तो इतनी परेशान थी कि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब कहाँ है तुम्हारी चची? मैंने आहिस्तगी से पूछा था। साहब के भाई का 2 मरतबा फ़ोन आया था। क्या कह रहे थे? मैंने हैरान होकर पूछा। वो कह रहे थे चची को लेने आने के लिए। क्या वो चली गई? मैंने बेचैनी से पूछा था। जाते हुए देखा तो नहीं, उसने लापरवाही से कहा था। आप खुद अंदर देख लें। मैंने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। किचन कुछ दिन पहले वो मुझसे जाने के लिए कह तो रही थी। मुमकिन है कि चली गई हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था वो मुझे बगैर बताए चली गई। मैं मुतलाशी नज़रों से चार तरफ देखता रहा। हर कमरा झांक लेने पर वो नज़र न आई थी। मैं बेचैन होकर किचन की जानिब बढ़ गया था। अंदर झांका तो शुक्र और इत्मीनान की लंबी सांस ली।
मेरी नज़र ठहरी तो बस ठहर ही गई थी। किचन के दरवाजे में खड़ा मैं देखे गया, बस देखे गया। मैं इस वक्त आटा गूंदने की तैयारी कर रही थी कि मुसलसल किसी की नज़रें अपनी पुष्ट पर महसूस करने पर बौखला गई। इख्तियार पलट कर देखा तो अफनान आदिल को दरवाजे में खड़ा पाया। अस्सलाम वालेकुम, उसने धीमे से कहा। ओह वालेकुम अस्सलाम। मैं सांसों को हमवार करने की कोशिश करते डरे डरे अंदाज में मुस्कुराई थी। ये तुम हो? हाँ, वह मुस्कुराया था। मुझे पता भी नहीं चला। हमेशा पता चल जाता है। हाँ, तुम जो फ्रेगनेंस इस्तेमाल करते हो वो बड़ी वाइल्ड सी होती है। मैं ऐसे समझ जाती हूँ। आज तुम कुछ लगाना भूल गए? हाँ, मैं अब अक्सर बातें भूल जाता हूँ, उसने ज़ोमाइनी अंदाज में कहा। तुम आज जल्दी आ गए? नहीं, मैंने आने में देर कर दी। कोई बात नहीं, अपने वक्त से तो पहले ही आ गए। हाँ, वाकई अपना वक्त गुजरने से तो बहुत पहले आ गया, उसने एतराफ़ करने वाले अंदाज में कहा। मैं बहुत हैरान हुई। अफनान आदिल आज कैसी बातें कर रहा है? ताहम बड़े आम से अंदाज में कहा। इसीलिए मैंने कहा था कि आज मत जाओ, तुमने सुना नहीं। आइंदा सुन लिया करूँगा, उसने आहिस्तगी से कहा था। मैं उसकी बात पर बेहोश होते होते बची। अपना नादिल जैसा सिर्फ अपनी मर्जी करने वाला आदमी इस वक्त मुझसे कह रहा था कि आइंदा सुन लिया करूँगा। आज सूरज मशरिक से ही निकला था ना? मैंने हैरानगी से सोचते हुए आटा लगे दाएं हाथ को मैंने हैरानगी से सोचते हुए आटा लगे दाएं हाथ की पुश से नीचे नाक तक फिसल आने वाली ऐनक ऊपर की थी। गालों पर आने वाले बालों को हटाया। मैं अभी अभी नहा कर आई थी और गीले बालों को मैंने यूं ही बांध लिया था और अब बाल खुल रहे थे जो बार बार स्कार्फ से निकलकर गालों पर आ रहे थे, तंग कर रहे थे। अफनान आदिल खामोशी से मुझे देखे जा रहा था और मुझे एकदम याद आ गया कि उसने सुबह से सिर्फ नाश्ता ही किया हुआ है और खाना तो उसने यकीनन खाया नहीं होगा। सोच से कहा, अफनान खाना खाना हो तो बता दो। नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा। कुछ नहीं खाना? चाय और पानी, कॉफ़ी? मैंने मैंने अब की बार पेशानी पर जब मैंने अब की बार पेशानी पर चिपक जाने वाले बालों को हटाते कहा। नहीं, वो आहिस्तगी से कहकर अंदर चला गया। कुछ नहीं पीना? कुछ और? अभी मेरी बात मुकम्मल भी ना हुई कि उसने मेरे बिल्कुल करीब आकर मुझे नरमी से शानों से थामा और मेरा चश्मा उतार कर अपनी जेब में रख लिया। मैं साकित सी खड़ी की खड़ी रह गई। उसने दाएं हाथ की शहादत की उंगली से मेरे बालों और पेशानी पे आने वाले बालों को स्कार्फ के अंदर किया था और मुझे अपने कदमों पर खड़ा रहना दुश्वार लगने लगा। उसने बड़ी एहतियात से मुझे संभाला और मेरा सर बेख्तियार उसके कंधे से जा लगा था। इस लम्हे मुझे ये एहसास भी ना था कि ये किचन है, कोई भी यहाँ किसी भी वक्त आ सकता है। हर एहसास जैसे मर चुका था। अफनान आदिल ने आहिस्तगी से मेरी पेशानी पर होंठ रख दिए थे। मैंने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। आज भी तुम्हारा रोज़ा है? वो मुझसे पूछ रहा था। मैंने भिजी भिजी आवाज़ में कहा। अच्छा, उसने आहिस्तगी से कहकर मेरी दोनों कलाइयाँ नरमी से पकड़कर मुझे खुद से अलहदा किया तो बेख्तियार मेरी सिसकी निकल गई। क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। यहाँ से जल गया था, मैंने इशारा किया। बेदाग सफ़ेद कलाई पर बड़ा सा सुर्ख धब्बा वाज़ेह था। एक रोज़ेदार से, वो भी इस हालत में, मेरे घर वालों को काम करवाते हुए ज़रा लिहाज ना आया, कोई ख्याल भी ना आया। बहुत खफा होकर उसने कहा। फिर मेरे हाथ को आहिस्तगी से छोड़कर दरवाजे की जाने बढ़ा। अभी पूछता हूँ जाकर। तुम्हारे घर वालों ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने जल्दी से कहकर उसका हाथ पकड़ना चाहा तो आस्तीन गिरफ्त में आ गए। उसने पलटकर मुझे देखा। मुझे से शाम नहीं गुजर रही थी। मैंने बड़ी भाभी से कहा, मुझे कोई काम बता दें। उन्होंने मुझसे कहा कि बस रात के लिए आटा गूंदना है। मैं वैसे भी फालतू फिर रही थी। मैंने कहा, मैं गूंद देती हूँ। देखो, मुझे दूसरों को डिफेंड करने की तुम्हारी आदत पता है। मुझसे झूठ मत बोलना। शहादत की उंगली मेरे चेहरे के करीब लाते उसने कहा था। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही अफनान, मैंने कतियत से कहा। तब फिर ठीक है। उसने गहरी सांस लेकर मुझे देखा, फिर मेरे हाथ को देखा। मैंने एकदम उसकी कमीज की आस्तीन छोड़ दी थी। सारा आटा उस पर लग चुका था। मैं शर्मिंदा होकर आटा साफ करने लगी। वो साकित और सामित खड़ा था। मैंने बेख्तियार नजर उठाकर उसे देखा। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने गड़बड़ा कर निगाह झुका ली। देख लो, जी भर कर देख लो, मैं तुमको किसी हक से महरूम नहीं कर रहा। मैंने बेख्तियार नजर उठाकर उसे देखा तो उसे मुस्कुराते पाया था। तुमको क्या अभी कुछ देर लगेगी? अब वो मुझसे पूछ रहा था। हाँ, थोड़ी देर तो लगेगी। मैं तवील सांस लेकर आटे की तरफ मुतवज्जा हो गई। तुम्हें मुझसे कोई काम था? हाँ, काम तो था, उसने गहरी नज़र से मुझे देखते कहा। मगर मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम इत्मीनान से फारिग हो जाओ। वो कहकर इत्मीनान से दरवाजे की तरफ खड़ा हो गया। अफनान, तुम चलो, मैं आ रही। नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, तुम बैठ तो जाओ। बैठ जाऊँगा, तुमको देख तो बैठ जाऊँगा तो तुमको देख नहीं सकूँगा। यहाँ कहाँ गर्मी में खड़े रहोगे? तुम भी तो गर्मी में दोहरी मशक्क़त कर रही, उसने फ़ौरन कहा था। दुनिया तुम लोगों के लिए कितनी मुश्किल है ना, मैं इस बात को रियलाइज़ करता हूँ। मेरे घर में अगर तुम बगैर स्कार्फ दुपट्टे के भी रहोगी ना, तो तुमको कोई आँख उठाकर देखेगा भी नहीं। मेरे बाप भाई शरीफ मर्दों में से। तुम अगर ये बात भी ना कहते तो भी मैं उनके साथ 4 महीने से रह रही, मैं जानती हूँ। मगर मसला ये है कि मैं इस बात को पसंद नहीं करूँगा। मैं ये भी जानती हूँ, मैंने सर हिलाकर कहा। मैं यहाँ इसे लगवा दूँगा।
उसकी इस बात पर मैं बेसाख्ता मुस्कुराई थी। तुम्हारी अम्मी भाभियाँ कहेंगी हम इतने अरसे से इसी तरह काम करते चले आ रहे हैं, तब तो अफनान को कभी ख्याल ना आया। जब बीवी ने काम करना शुरू किया तो ख्याल आ गया। मेरी अम्मी भाभियाँ बहुत ब्रॉड माइंडेड है। उसने बुरा मनाए बगैर कहा। मैं खामोश हो गई, आटा गूंथती रही। वो बड़े सुकून से खड़ा मेरा इंतजार करता रहा। उसके देखने के अंदाज में बड़ी मीठी सी कैफियत थी। मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे करके आटा गूंदा, उसे बर्तन में निकाल कर फ्रिज में रखा, और जब मैं मुड़ी तो पता चला कि वो कमीज की आस्तीनें फोल्ड किए हुए परात हो रहा था। अफनान, मैं शर्मिंदगी के मारे और कुछ बोल ही ना सकी थी। मैं अफनान, आदिल और छोटे भाई का मवाजना करने लगी। छोटे भाई को जल्दी तो बेहद होती थी, मगर हराम था कि वो जो किचन के काम को हाथ भी लगा लेते, छोटी भाभी की ज़रा भी हेल्प करवा देते। और अफनान आदिल इस वक्त मुझसे पूछ रहा था, कहाँ रखूं? मैंने उसके हाथ से परात लेकर मुकर्ररा जगह पर रख दी। कुछ और तो नहीं करना? उसने मजीद पूछा था। नहीं, मैंने आहिस्तगी से कहा। चलो, आओ। फिर दरमियानी रफ्तार से चलते हुए मैं और वो आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। उसने नरमी से मेरा कंधा पकड़कर मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। खुद भी मेरे बराबर में बैठने लगा। फिर एकदम उठ खड़ा हुआ। नहीं, मुझे तुम्हें देखने में मुश्किल होगी। वो कुर्सी खींचकर मेरे सामने आन बैठा था। मैंने स्कार्फ उतारकर एक तरफ डाल दिया। गीले बाल बेतरतीबी से इधर उधर बिखर गए थे। चंद लम्हे मुझे खासी महवे से तकने के बाद अफनान आदिल ने खाकी रंग का खासा फूला हुआ लिफाफा मेरी जानिब बढ़ा दिया था। मैंने खौफजदा सी नजरों से उसके बढ़ते हुए हाथ को देखा और लिफाफा उसे लेने से गुरेज किया था। ये क्या है? मैंने डरते डरते पूछा। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। अरे तुम डर क्यों रही हो? खुद ही खोल कर देख लो ना, इत्मीनान से उसने कहा था। नहीं तो तुम खुद ही बता दो, मैंने कतियत से लहजे में कहा। अरे ले भी लो भाई, उसने इसरार किया। अब की बार मैंने लिफाफा उसके हाथ से ले लिया। डरते डरते उसे खोला तो अच्छी खासी रकम थी। मैंने उलझन ज़दा सी नज़रों से उसे देखा। इतने सारे पैसे? ये तुमसे शादी के बाद पहली पे है मेरी, उसने मुस्कुराते हुए बताया था। फिर जेब से 2 चेक निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये दूसरी तीसरी इंशाल्लाह कैश कल करवा लेंगे। मैंने हिचकिचाते हुए चेक भी ले लिए। मैं इतने का क्या करूँगी? जो चाहे सो करो, उसने लापरवाही से कहा था। चाहो तो सारी सेव कर लो, चाहो तो सारी खर्च कर दो। मगर ये तो मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने कदरे उलझन से पूछा था। क्योंकि तुम्हें ही देनी चाहिए थी। मैंने तफहीमी अंदाज में सर हिलाकर लिफाफे में से बगैर गिने कुछ रकम निकाली। दोनों चेक लिफाफे में रखे और लिफाफा उसे दे दिया। मैंने ले लिया है, मुझे जितना लेना था। मेरी तरफ से बाकी जमा करवा देना। उसने मजीद कुछ कहे बगैर लिफाफा मेरे हाथ से लेकर मेरे करीब मसहरी पर रख दिया। मैं उसके बोलने की मुंतज़िर रही, और वो बगैर कुछ कहे मुझे यूं ही देखता रहा। मुझे आज इसका इस तरह देखना उलझन में मुब्तला नहीं कर रहा था, बल्कि अच्छा लग रहा था। उसके देखने के अंदाज में बड़ी नरमी थी, बड़ी गर्मी थी। मुझे अपना आप मोम के सांचे में ढला लग रहा था। हिद्दत से कतरा कतरा पिघलता हुआ खासी देर बाद उसने कहा, मुझे रश्क आता है तुम पर कि मेरी बीवी का नाम जवाहिर है, और अलमास इनमें सबसे कीमती है। अलमास सिर्फ एक कीमती पत्थर को कहते हैं, और जवाहिर बहुत सारे कीमती पत्थरों को। अलमास की कीमत का शायद कोई अंदाज़ा नहीं लगा सके, मगर जवाहिर की कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अलमास की कीमत का कोई अंदाज़ा लगा भी सके, मगर जवाहिर की कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उसकी इस बात पर मैं मुस्कुरा दी थी। मैं समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा था। वो तो मुझे चाहे जिस नाम से भी पुकारता, मुझे वही नाम अच्छा लगता। वैसे भी इन 4 महीनों में मैं इस जवाहिर नाम की इस कदर आदी हो गई थी कि अलमास नाम तकरीबन मुझे भूल ही गया था। और अगर अब मुझे कोई अलमास के नाम से पुकारता भी तो मुझे अजनबी लगता था। वो कह रहा था, तुमने एक दिन मुझसे पूछा था ना कि जवाहिर हमारे दरमियान क्या है, तो सुनो, आज तुमको बताऊं, हमारे दरमियान सिर्फ एक रात थी। उसकी ये बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। लेकिन गड़बड़ उस रात से एक दिन पहले शुरू हुई थी, जब तुम मुझसे आन लगी थी। उफ, क्या क्या याद था उसे। मैं मर हया के निगाह नहीं उठा पाई थी। बस मुझे यूं लगा जैसे 2 ऑपोजिट चार्जेस मिल गए। सर्किट कंप्लीट हो गया। मैं खुद को किसी तरह इस फ्लो ऑफ करंट से बचा नहीं पाया था। वो मुझे अपनी कैफियत बता रहा था और मुझे उससे बेतहाशा हिजाब आ रहा था। उसकी कच्ची मिट्टी का फ़लसफ़ा भी अब मुझे समझ आ गया था। कोई नहीं, मैंने हिजाब आलूद लहजे में अटक अटक कर कहा। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। वो हौले से मुस्कुरा दिया। तुमको ऐसा कुछ महसूस हो भी नहीं सकता था, क्योंकि तुम अफनान आदिल नहीं थी, तुम तो अलमास थी। तुम अफनान आदिल होती तो तुमको पता चलता। मैं अपनी कैफियत से डर गया था, और इतना डर गया कि अगले दिन मैंने सारी कहानी बड़े भाई को सुना दी। बड़े भाई ने सुनकर सर पकड़ लिया। उन्होंने मुझे तुमसे मिलने से बिल्कुल मना कर दिया था। इसके बावजूद तुम रात मेरे पास चले आए थे। मैंने हैरानी से पूछा था। इस वक्त मुझे ये बात पता नहीं थी कि मैं किस चीज़ के अंडर इन्फ्लुएंस तुम्हारे पास आया हूँ। बड़े भाई ने तुमसे शादी से पहले मुझसे ये बात पूछी थी, उसने धीमे लहजे में कहा। तो मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तुमने उन्हें बता दिया था? मैं उन्हें क्या बताता? बताने वाला कोई बताने वाली तो कोई बात होती तो ना। हाँ, मैं तुमको ज़रूर बता सकता हूँ। और जब वो वाक़या
उसने मुझे बताया तो मेरी पूरी आंखें खुल गई थी। मैंने शौक के आलम में उसे देखा तो तुम सब कुछ देखकर मेरे पास आ रहे थे। मेरे मुंह से सही तरह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जितना कुछ तुमको बताया है इससे कहीं ज़्यादा कुछ देखकर तुम्हारे पास आ रहा था। वो इत्मीनान से बैठा कह रहा था तुम पागल हो गए थे अफनान। मुझे बोलना मुश्किल हो रहा था। मैं पागल के अलावा और भी बहुत कुछ हो गया था। उसके इत्मीनान में किसी तरह कोई फ़र्क नहीं आया था। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया था? मैंने अब की बार कदरे नाराज़ी से उससे पूछा था। नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, उसने एतराफ़ करने वाले अंदाज में कहा। तुम्हारी अकल कहाँ थी अफनान? मेरा सर पीट लेने को दिल चाह रहा था। रुखसत हो गई थी, तब तो बचत हो गई। ओह वाकई मामा, मैं कहते कहते एकदम रुक गई थी। उसे देखने लगी। मेरे मुंह से मामा का नाम सुनकर वो मुस्कुरा दिया था। हाँ क्या मामा? बदसूर मुस्कुराते उसने पूछा। पता नहीं, मैं हकलाने लगी। हाँ कहो कि जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने इस बार उसकी आंखों में नमी देखी थी। पता नहीं अच्छा हुआ या बुरा, मैंने अजीब से अंदाज में कहा। शायद ऐसा ही होना था। हाँ, उसने गहरी सांस ली। शायद ऐसा ही होना था। और फिर जब मेरी आंख खुली तो पूरा वजूद एक दुखता हुआ फोड़ा था। मेरे घर वाले नाराज थे मुझसे और अब्बू शदीद नाराज। अब्बू ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा था। मुझे अब्बू के अल्फाज किसी वक्त भी भूलते नहीं थे। उसने मुझे अब्बू के मुतल्लिक कहे जाने वाले पूरे पूरे जुमले बताए थे। मैं आंखों में नमी लिए उसे देखती रही। जवाहिर, अब्बू की नाराज़गी की कोई हद नहीं थी, बदगुमानी की कोई हद नहीं थी। मैं तो इंग्लैंड तक जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देता अगर बड़े भाई आड़े ना गए होते। उसने तवील सांस लेकर बताया था। फिर वहाँ इंग्लैंड में मुझे मार्था इवांस मिली थी। मार्था इवांस जो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल की थी। तुम में और उसमें इतनी मुशाबहत थी कि पहली मर्तबा देखने पर ही मैं चकरा गया था कि ये तुम हो। मेरी ज़हनी कैफियत इतनी बुरी थी कि मैं तो बस वहाँ से भाग जाना चाहता था। तुम मगर मेरी हर कोशिश बेकार गई थी। वो खोए खोए से अंदाज में एक-एक बात बता रहा था। और इस सारे किस्से के दौरान एक मेहरबान शख्स मेरे साथ था। उसके लहजे में एहसानमंदी की सी कैफियत थी, जो हर बार मुझे जब मिलता है तो एक एहसान का इज़ाफ़ा मुझ पर कर देता है। मुझे तो उसके पहले ही एहसान का बदला उतारने का मौका अभी तक नहीं मिल सका। बाकियों की तो बात दूर की है। शायद एहसानात का बदला चुकाया ना जा सके। मैंने अपना आदिल को खामोश पाकर खासी देर से कहा था। मगर किसके लिए मगर किसी के लिए दुआ तो की जा सकती है। हाँ, बात तो सच है, उसने आहिस्तगी से कहा। फिर चुप सा हो गया। मैं मार्था इवांस के मुतालिक सोचने लगी। तो आखिर मुझ में और मार्था इवांस में ऐसी कैसी मुशाबहत थी? मैंने इस्तेजाब से सवाल किया। जवाहिर, इतनी मुशाबहत थी कि तुम और वो अलग अलग देखने पर जुड़वा लगती, मगर साथ खड़ा कर दिया जाए तो आंखों की रंगत से डिफ्रेंशिएट कर लिया जाता। और दूसरा, उसके गालों पर मुस्कुराते वक्त डिम्पल नहीं पड़ते थे। मुझे हैरानी थी, उसने मार्था इवांस को इतना नोट किया था। वो अच्छी लगती थी या मैं अच्छी लगती? मैंने धीमे लहजे में जानना चाहा था। वो तुमसे मिलती हुई ज़रूर थी मगर अच्छी तुम लगती हो, क्योंकि तुम। वो कहते कहते रुक गया था। मैं मुंतज़िर निगाहों से उसे देखे गई। और वो कह रहा था। वो असल में मेरे बारे में थोड़ा गलतफ़हमी का शिकार हो गई थी और मेरी बदकिस्मती ये कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। मुझे मार्था इवान से हसद होने लगा। ये जानकर मेरे सिवा कि कोई और भी अफ़नान को चाह सकता है और कहीं अफ़नान भी तो उसे, ये सोचकर मेरा दिल बैठने लगा। तुम भी उससे मोहब्बत करने लगे थे? खुद पर बड़ा ज़ब्त करते मैंने पूछा था। नहीं नहीं, वो तेज़ी से बोला था। मुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं थी। मैं तो उससे बेहद नफ़रत करता था। उसे दूर भागता था। ज़हर लगती थी वो मुझे। और मैं आज तुम्हारे सामने अफ़सोस के साथ कह रहा हूँ कि मेरा उसके साथ सलूक वाक़ई अच्छा नहीं था। मैं अब कभी भी खुद को गिल्टी महसूस कर सकता हूँ। कोई समझ नहीं सकता इन इन दिनों मैं किन मुश्किलात से दो चार हुआ था। वो बहुत बुरे दिन थे। इमारता इवांस मेरे पीछे थी और मैं बड़ी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ाकर यहाँ आया था। मैं खामोशी से उसे देखती रही, आंखें नमकीन पानियों से भरती रहीं। वो बहुत चाहती थी तुमको। आंसुओं के को पीछे धकेलते अटक अटक कर मैंने पूछा था। वो संजीदा हो गया। चाहती होगी वो मुझको, निहायत लापरवाही से उसने कहा था। मगर ये बात दावे से कह सकता हूँ कि वो मुझको तुमसे ज़्यादा नहीं चाह सकती, चाह ही नहीं सकती थी। मेरी आंखों में पानी ठहर सा गया था। काफ़ी देर तक तो कुछ भी बोलने के काबिल ना हो सकी। आई एम ऑनर्ड, मैंने नम आंखों के साथ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। नो, आई एम द वन दैट इज़ ऑनर्ड, उसने फ़ौरन कहा। मेरी तुमसे शादी हो गई। हाँ, बस पहली रात को तुमको देखकर मुझे हर किस्म का शौक लगा था। वो खुद तो खैर मुझे भी लगा था। मैंने अब की बार कदरे सकून से कहा। और शादी के तीसरे दिन तुम बेखबर सोई हुई थी। मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैं बेख्तियार तुम्हारी तरफ बढ़ा था। मगर ऐन वक्त पर मुझे क्या क्या कुछ याद नहीं आ गया था। और मुझे समझ में आया कि उस दिन इसका रवैया इस कदर एबनॉर्मल क्यों था। उफ, मैं डर गया था जवाहिर, मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। वो बच्चों की तरह से कुर्सी की पहुँच से सर टिकाए आंखें बंद किए मुझे बता रहा था। और मैं हमदर्दी से उसे देख रही थी। उसके अगले दिन तुम्हारे मामा से मेरा ठीक ठाक झगड़ा भी हुआ था। इससे पहले भी वलीमे वाली रात मेरा उनसे झगड़ा हो चुका था। मगर इस बार मैं तुमको तलाक देने के लिए उनसे कहकर आया था। ये बात सुनकर मुझे एक और धक्का लगा था। मैं पथराई आंखों से उसे देख रही थी।
मैं तो पेपर्स भी बनवा चुका था, बस अब्बू की बीमारी की वजह से मेरा इरादा मुलतवी हो गया। उसकी बंद आँखों के कोनों से गिरते आंसुओं को मैंने बेबसी से देखा था। मुझे भी रोना आ रहा था, रोना आ ही जा रहा था, खौफ के मारे, डर के मारे और तशक्कुर के मारे भी। मैं तुमको और क्या बताऊं जवाहिर, और तुमसे क्या छुपा लूं? वो आंखें बंद किए मुस्कुराने की कोशिश करता कह रहा था, कहने को तो ये सिर्फ एक रात की बात है, मगर मैं जानता हूँ, तुम जानती हो, हम दोनों जानते हैं कि ये रात 13 साल 4 माह पर मुहित थी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस अजीम थे और भुगतने वाली तुम थी, मैं था, हम दोनों थे। शायद तुमने ज़्यादा सफ़र किया हो, शायद मैंने ज़्यादा सफ़र किया हो, कुछ कहा नहीं जा सकता किसने कितना सफ़र किया, मगर बहरहाल हम दोनों सफ़र करते रहे थे। उसने जैसे सिसकी लेकर कहा और मैं बेचैन होकर आंसू पोंछते उठी थी। ठहरो, मैं पानी लाती, तेजी से कहकर मैं जाने लगी और उसी सूरत से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा था। आज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, आज भी, अभी, इस वक्त तो बस तुम चाहिए हो। मैं अलर्ट होकर खामोशी से दोबारा बैठ गई थी। उसने मेरा हाथ होठों से लगा लिया था। उसकी आंखों से गिरने वाले शिफाफ पानी के कतरों को खासी बेबसी से मैंने देखा था। अफनान, ये बहुत कीमती है। उसने हौले से मुस्कुराने की कोशिश की। मुझसे पूछा कि ये कितने बेमाया है। खामोशी का लंबा वक्फा हमारे दरमियान आ गया था। मैं बिना पलक झपकाए उसे देखे गई। जवाहिर, एक दिन तुमने मुझसे कहा था ना कि हमारे दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्यों नहीं है। खासी देर बाद सर झुकाए झुकाए ही उसने कहा था। मैं तुम्हें बताऊं क्यों नहीं है? क्योंकि तुम ज़मीन हो जवाहिर, और ना मैं तुम पर गिरने वाला सेब। तुम मैग्नेट नहीं हो और ना ही मैं लोहे का टुकड़ा। नीचे गिरने वाले सेब का मुकद्दर सिर्फ पेट होता है और लोहे के टुकड़े का मुकद्दर सिर्फ आग होती है। मैं सेब नहीं होना चाहता जवाहिर, और ना ही मैं लोहे का टुकड़ा होना चाहता हूँ। मैं तो जवाहिर तुम्हारा लिबास होना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि तुम भी मेरा लिबास हो जाओ। लिबास जो ज़ेब और ज़ीनत का ज़रिया भी है, लिबास जो मौसम के सर्द और गर्म से बचाता है, लिबास जो सतरपोशी भी करता है, लिबास ऐब भी छुपाता है और लिबास किसी की हैसियत भी बताता है। उसने सर उठाकर एकदम मुझे देखा था। मैं उस मैं जो उसे ही देख रही थी, ज़्यादा देर उसे देख न सकी। उसकी आंखों में इतनी रोशनी थी, मैंने बेख्तियार निगाह झुका ली थी। जवाहिर, कुछ देर बाद उसने पुकारा था। दुनिया में 100,000 लोगों से 100,000 मरतबा ये बात कही होगी, मगर आज मैं तुमसे पहली मरतबा कह रहा हूँ। वो एक बार फिर रुक गया था और मेरी सांस भी रुक गई थी। जिस्म का रुआं रुआं कान बन गया था। वो सर झुकाए मेरे हाथ की उंगलियों से खेल रहा था। मुझसे अब की खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी चुप से मुझे बेहद उलझन हो रही थी। उसने एकदम मेरा हाथ छोड़कर सर उठाया था। जवाहिर, मैं बहुत चाहता हूँ तुमको। उफ, मेरे दिल में एकदम ठंडक पड़ गई थी। जवाहिर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसने बहुत बेसब्री से कहा और मेरे अंदर ढेरों सुकून उतर आया था। मेरी खुशकिस्मती की कोई हद नहीं थी कि तुम मेरा नसीब हो। जवाहिर, मेरी बदकिस्मती की कोई हद ना होती अगर तुम मेरा नसीब ना होती। उस शख्स का मुझ पर बड़ा एहसान है, उसने तुम्हें मेरे लिए छोड़ दिया। ये सच है कि मैंने अल्लाह ताला से तुमको कभी नहीं मांगा था, तो मुझे बिन मांगे मिली हो, मगर ये उसका एहसान है कि जो उसने तुमको मुझे दे दिया। तुम जवाहिर, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे बेगर्ज होकर चाहती हो, मगर मेरी हालत में तुमसे गर्ज वाबस्ता है। तुम मुझे यहाँ वहाँ दोनों जहानों के लिए चाहिए हो जवाहिर। मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली औरत थी और तुम ही आखिरी रहोगी। मार्था इवांस का भी ये किस्सा था कि वो तुमसे मिलती हुई थी, वरना तुम्हारे सिवा किसी दूसरी औरत को ना मैं कभी देखता हूँ और ना ही कभी आइंदा देखना पसंद करूँगा। उसने ठहरे हुए लहजे में कहा था। जवाहिर, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बना था और तुम्हारे लिए ही बना। मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं सर से पैर तक तुम्हारा हूँ। अगर मेरी सांस अल्लाह ताला की अमानत ना होती तो मैं तुमसे कहता कि मेरी हर सांस तुम्हारी। अगर मेरी ज़िंदगी मौत की अमानत ना होती तो मैं तुमसे कहता कि मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारी। बस कर दो अफनान, मैंने सिसकी लेकर कहा था। खुदारा चुप हो जाओ। मैं तुम जैसा फरमाबरदार तो नहीं हूँ जवाहिर कि जिस बात को मैं मना कर दूँ तुम इससे रुक जाओ। मुझे तो आज वो सब कुछ तुमने कह देना है जो मैं अब तक कह नहीं पाया, मगर मुझे आज अल्फाज नहीं मिल रहे जिनसे मैं अपने जज्बात को बयान कर सकूं। काश फीलिंग्स को टॉक देमसेल्व्स। अफनान, मैंने सिसकियां रोकने की कोशिश की। ये बहुत है। ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था, इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था, और मांगा तो मैंने भी नहीं था। सब कुछ बिन मांगे मिला है, उसने एतराफ़ करने वाले लहजे में कहा। सोचती हूँ शुक्र अदा कर पाऊंगी। मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा। कोशिश तो कर सकते हो, तो चलो मिलकर कोशिश करते हैं, उसने एकदम कहा था। हम उम्रा करेंगे। मैंने बेयकीनी से उसे देखा। वो कह रहा था, अगले 15 दिन के अंदर हम वहाँ जा रहे हैं। इतने से दिन में क्या ये मुमकिन है? बेयकीनी से मैंने पूछा था। हाँ, क्यों नहीं? मैं वो आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया था। टॉप सऊदी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मेरी मुलाकात टॉप सऊदी गवर्नमेंट ऑफिशियल से मेरी ताल्लुकात हैं,
اور 15 दिन तो मैंने ज़्यादा कह दिए हैं। इंशाल्लाह हफ्ते भर के अंदर मैं चाहता हूँ कि हम हरम में हों। उसने हतमी अंदाज में कहा। मैं बेख्तियार मुस्कुराई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी नीयत यूं भी पूरी होगी। इतनी जल्दी अफनान? मैंने मसरूर होकर कहा। वो उठ खड़ा हुआ था। मैं ज़रा अब्बू को बता दूँ? उन्होंने मुझसे पूछा था। तफरीह के लिए कहाँ जा रहे हो? मैं उसके अंदाज पर मुस्कुराए बगैर ना रह सकी थी। वो दरवाजे की जाने बढ़ा, फिर कुछ सोचकर एकदम पलटा था। और जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझको तैयार मिलो। अच्छा, मैंने मजीद कोई सवाल किए बगैर कहा। तुम पूछोगी नहीं क्यों? नहीं। वो एकदम मुस्कुरा दिया था। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ अम्मी अब्बू के यहाँ जाना चाहती हो, लेकिन एक शर्त होगी। उसने गहरी नज़रों से मुझे देखते कहा। मेरे मुस्कुराते लब एकदम भिज गए। सवालिया नज़रों से उसकी जानिब उठ गई। तो वही साड़ी पहनोगी जो उस दिन पहनी थी? अच्छा, मेरी मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। मगर अब की बार इस्त्री करके पिछली बार इस्त्री किए मगर अब की बार इस्त्री करके पिछली बार तो बगैर इस्त्री के पहन ली थी। उसने मुझे याद दिलाया था। वो तो ठीक है, मगर इसमें ज़रा देर लगेगी और अभी अजान होने वाली होगी। हाँ हाँ, तुम इत्मीनान से फारिग हो जाओ। उसने फ़ौरन कहा। मुझे भी कुछ देर लगेगी। वो बाहर चला गया था और मैं उसके पीछे कोई क्या, कब, क्यों, कैसे सोचना भी नहीं चाह रही थी। ये भी नहीं कि इतनी जल्दी तब्दीली और वजह। अजानें हो रही थी और सिवाय पानी के एक गिलास के मेरे हलक से कुछ और उतरा कुछ और उतर भी नहीं सका था। मुझे ख्याल आ रहा था कि अफनान ने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। दीगर कामों से फरागत के बाद मैं तैयार होने कमरे में चली आई थी। ज़िंदगी में पहली मर्तबा बहुत दिल लगाकर मैंने तैयारी की और आज के दिन मेरी सारी तैयारी खालिसतन अफनान आदिल के लिए थी। जब मैंने हतमी तौर पर तैयार होकर आईना देखा तो मुझे खुद से हिजाब आने लगा। अफनान आदिल अंदर आया तो मुझे देखकर पलके झपकना भूल गया। मुझे उससे बेतहाशा हिजाब आ रहा था। यार, आज तो तुम सब आजमाने पर तुली हो। खासी देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हो सका था। दिल चाहता है? उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया था। क्या? कुछ नहीं। उसे झटक कर मुस्कुरा दिया था। दिल के कहने पर चलने लगा तो बहुत कुछ रह जाएगा। वो ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगा। साथ साथ चोरी चोरी मुझे भी देखता जा रहा था। मिकदार आने वाली मुस्कुराहट को मैंने रुख मोड़कर गाउन पहनने के बहाने छुपा लिया था। स्कार्फ लपेटा और जब अफनान आदिल को कलून लगाकर मेरी तरफ और जब अफनान आदिल कॉलोन लगाकर मेरी तरफ पलटा तो सारा कमरा महक गया था। मैंने गहरी सांस लेकर यह महक अपने अंदर उतारी थी। वाकई अफनान पागल कर देने वाली खुशबू लगाता था। हम कमरे से बाहर निकलने लगे तो वो एकदम पलटा और मुझे देखा। जवाहिर, मैं और तुम साथ चलने के लिए बने, आगे पीछे चलने के लिए नहीं। मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ होली। अब्बू और अम्मी के कमरे में पहुंचने पर अफनान दोनों के आगे झुका और मैं भी। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज। अब्बू ने खुशदिली से हमारे सर पर हाथ रखकर कहा। वापसी के कब तक इरादे हैं? अम्मी ने पूछा था। अब्बू ने खुशमगी निगाहों से उन्हें देखा और बोले, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से जाओ, आराम से आना। देर होने की सूरत में फ़ोन कर देंगे। अफनान ने कहा। अम्मी ने सर हिला दिया। मैं और वो साथ साथ चलते पोस्ट तक आए थे। मैंने अफनान आदिल की इस इकलौती खड़ी गाड़ी को हैरत से देखा। अफनान, दूसरी गाड़ी तुम्हारी नज़र नहीं आ रही? इसके साथ हादसा पेश आ गया है। कैसा हादसा? जवाबन उसने हादसे की तफसील बताई और इसी वक्त मुझे सुबह देखा जाने वाला ख्वाब याद आ गया था। ख्वाब सच्चे भी हुआ करते हैं। खुदा ना खास्ता तुमको कुछ हो जाता तो? मैंने फिक्रमंदी से कहा। वो एकदम मुस्कुराया। मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तुम डरना छोड़ दो, फिक्र करना छोड़ दो। तुम्हें अफसोस नहीं है इस लॉस का? थोड़ा बहुत तो है, मगर मेरी सबसे कीमती चीज़ तो मेरे पास है। उसने करीब होकर मेरे कंधे पर हाथ उठाए। इसीलिए ज़्यादा अफसोस नहीं। अच्छा, मैं मुस्कुराई थी। ये तो बहुत अच्छा कंपेंशन ये तो बहुत अच्छा कंपनसेशन। वैसे एक बात बताओ, है तो अजीब मगर सच है। तुमसे मेरी बात तय होती ही सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में हुकूमत ने खातिर ख्वाह इजाफा किया था। तो मेरे साथ तुम मेरे लिए लकी हो। वो उसकी बात को तस्लीम कर और मैं इस बात को तस्लीम करता। चचू चची, फरहान अंदर से भागता हुआ आया था। अफनान ने एकदम मेरे कंधे पर से हाथ हटाया और मुझसे थोड़ा हटकर खड़ा हो गया। मुझे उसकी एहतियात अच्छी लगी थी। फरहान तेज कदमों से चलता करीब आया था और मुझे देखकर ठिठक गया। चची, वो खुशी से वो खुश होकर वो जोश में आकर चीखा था। आप कितनी अच्छी लग रही हैं। मैंने झेप कर थोड़ी तक आधा स्कार्फ कदरे ऊंचा किया था। अफनान ने एकदम फरहान की आंखों पर हाथ रख दिया। बेटे, चची तुम्हारे लिए अच्छी नहीं लग रही? बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।